سب کی سلامتی ہو۔ آج ساری دنیا میں خاص دن منایا جا رہا ہے اور جسے ہم مدرس ڈے کہتے ہیں، یعنی کہ ماں کا دن۔ تو میری طرف سے آپ سب کو ہیپی مدرس ڈے۔ اس دن میں ساری دنیا میں ماں کے کردار، اس کی شفقت، اس کی قربانیوں کو نمایاں کیا جاتا ہے، اور بہت سے بچے جو ہم سب یہاں پر موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ بچے اپنی ماں کو خاص طور پہ اس دن میں پھول دیتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں، اور ماں کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے جو کہ واجب بھی ہے۔ اور اگر ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں تو خداوند کے کلام میں 10 احکام میں سے ہم 5واں حکم دیکھتے ہیں کہ وہاں 5واں حکم ہمیں یہ دیا گیا ہے کہ تو اپنی ماں اور اپنے باپ کی عزت کرنا، تاکہ جس ملک میں تو جا رہا ہے وہاں پر تیری عمر دراز ہو۔ یہی حکم پالوس رسول بھی دہرا رہے ہیں افسیوں کے خط میں۔ آپ میرے ساتھ دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس بائبل ہے، افسیوں 6 باب اس کی پہلی سے لے کر دوسری آیت تک ہم دیکھیں گے۔ خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمانبردار ہو، کیونکہ یہ واجب ہے۔ اپنے ماں باپ کی، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ آگے پڑھیں گے۔ کہا کہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ آمین۔ جی ہاں، یہ پہلا حکم ہے ہمارے لیے کہ ہمیں اپنے ماں کی اور اپنے باپ کی عزت کرنی ہے تاکہ تیری عمر دراز ہو۔ یہ وعدہ ہے ہمارے لیے۔ اور میرے عزیزوں، اس دن کی اہمیت پر روشنی خدا کا کلام کچھ یوں ڈالتا ہے کہ جو بچے اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں وہ آج کے دن اپنے ماضی پر غور کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم سب کی نظر پیچھے جاتی ہے کہ کس طرح سے ان کی ماں نے، یعنی کہ ہماری ماں نے ہمیں کس طرح سے اپنے باطن میں کیری کیا، ہمیں اٹھایا، جنم دیا، ہمیں اس لائق بنایا، ہمارے لیے قربانیاں دی، ہمیں جوان کیا، اور ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اس مقام پر ہیں۔ آج آپ اگر پڑھے لکھے ہیں، آج آپ اگر آگے بڑھ چکے ہیں، خدا نے آپ کو اگر کوئی مقام دیا ہے تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس نے ماں کو استعمال کیا۔ ماں خدا کی طرف سے ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، اور نہ صرف اس عمر میں، اس دن میں، اور نہ صرف مدرس ڈے پر، بلکہ ساری عمر ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے ساتھ وعدہ بھی ہے۔ اور وعدہ کیا ہے؟ کہ تیرا بھلا ہو، تیری عمر دراز ہو۔ جی ہاں، جب ہم اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں تو ہماری عمر دراز ہوتی ہے۔ سوری ٹو سے، میں نے کچھ ایسے بھی بچے دیکھے ہیں جو جب ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو ان کو پوچھتے بھی نہیں ہیں، ان کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ اور میں آج میرا یہ میسج ہے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کریں، عزت دیں، کیونکہ وہ اس قابل ہے۔ کیونکہ آج اگر آپ اس دنیا میں موجود ہیں تو اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنی ماں کی وجہ سے، کیونکہ ماں کی ان قربانیوں کو دیکھیں کہ اس نے آپ کے لیے کیا کیا قربانیاں دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائم ہم بہت زیادہ پریکاشنز کرتے ہیں، ہم صحت کے بہت اصولوں کو مد نظر رکھتے ہیں کہ ہماری صحت اچھی رہے۔ ہم کچھ لوگ بہت اس چیز کو اہمیت دیتے ہیں، ڈائٹ پر بہت زیادہ کانشیس کرتے ہیں، کچھ لوگ ایکسرسائزز پر، کہ وہ بیماریوں سے، تکلیفوں سے بچے رہے اور ان کی عمر دراز ہو، اور ان کی عمر لمبی رہے، وہ تکلیفوں سے بچے رہے، وہ بیماریوں سے بچے رہے۔ اور آپ سب جتنے بھی یہاں موجود ہیں، میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی لمبی عمر ہو۔ لیکن ایک راز، ایک مکاشفہ خدا کے کلام میں ہے کہ جو بچے اپنے ماں
खुदा उन्हें लंबी उम्र देता है, खुदा उनकी उम्र दराज करता है। और हम देखते हैं कि ऐसे बच्चों के लिए आसमान खुला रहता है। माँ बाप के दिल से ऐसे बच्चों के लिए दुआएं निकलती हैं और वो हमेशा दुआएं करती हैं। ऐसे बच्चों के लिए हमेशा अच्छे अल्फाज निकलते हैं, अच्छी दुआएं निकलती हैं ऐसे बच्चों के लिए। तो आज मैं आप तमाम माँ को मुबारकबाद पेश करती हूँ, मैं आप सबकी खिदमत को सलूट पेश करती हूँ, आपकी कुर्बानियों को, आपकी शफ़क़त को दिल से सहराती हूँ। हम सब अपनी माँ के लिए जोरदार तालियां दें। क्योंकि माँ जैसी शफ़क़त, माँ जैसी मोहब्बत और माँ जैसी कुर्बानियाँ कोई और दे ही नहीं सकता। याद रखें, माँ का बुलावा तमाम बुलाओं से, तमाम खिदमत से, तमाम तरजीहात से बुलंद है, क्योंकि माँ का बुलावा खुदा की तरफ से। और एक यहूदी बड़ी मशहूर कहावत है कि जब खुदा हर जगह पर ना पहुंच सका, वो हर जगह पर ना जा सका, तो खुदा ने माँ को नुमाइंदा बनाकर भेजा बच्चों पर और मुकर्रर कर दिया उनको बच्चों के ऊपर कि वो बच्चों की जिम्मेदारी ले सके। तो खुदा ने माँ को चुना, खुदा ने माँ को एक बुलंद दर्जा दिया है। क्यों दर्जा दिया है? क्योंकि माँ के अंदर खुदा की तस्वीर है, माँ के अंदर खुदा का तस्वीर है। तो माँ खुदा की शफ़क़त का इज़हार है। माँ अगरचे नाक़िस ही सही, नामुकम्मल ही सही, क्योंकि खुदा कामिल है। माँ कामिल नहीं है, माँ से गलतियाँ भी होती हैं, खताएँ भी होती हैं, गुस्सा भी कर लेती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। खुदा की मेहरबानी है माँ, एक शख्सियत का नाम है माँ, और भलाई के लिए तख्लीकी कुव्वत है माँ, मदरहुड और ये केयर का नाम है माँ, मुसम्मम इरादे और रवैये का नाम है माँ। और माँ की हमेशा क्या कोशिश होती है कि अपने बच्चों के लिए वो दुआएं करती रहती है कि उसकी भलाई के लिए, उनके आगे बढ़ने के लिए वो हमेशा यही चाहती है कि तेरा भला हो, तेरी उम्र दराज हो, वो बालिग हो जाए, वो कामयाब हो जाए। उनके दिल से, माँ के दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि मेरे बच्चे कामयाब हो, मेरे बच्चे आगे बढ़े, मेरे बच्चे ऐसे मकाम पर पहुंच जाए कि वो दुनिया में आला मकाम हासिल कर सके। सो मैं बाइबल मुकद्दस में से आज 2 माओं का जिक्र करना चाहूँगी जिन्हें हीरोज़ के तौर पर याद किया जाता है, बिलखसूस आज के दिन पर। और मैं चाहूँगी कि हम सब मिलकर देखें उनकी कुर्बानियों को, उनकी शफ़क़त को, कि वो कैसी माएँ थी और उन्होंने क्या किया इस मुल्क के लिए, अपने बच्चों के लिए, और ना सिर्फ अपने खानदान के लिए, बल्कि उन्होंने, उन माओं ने ऐसा क्या किया कि आज उन्हें याद किया जाता है। हम पहली माँ के बारे में देखेंगे क़ज़ात की किताब में से 4 और 5 बाब में एक माँ का जिक्र है जिसका नाम है दबूरा। ये एक कैसी शख्सियत है, ये औरत कह सकते हैं कि इतनी लायक औरत है, ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी हम उसे कहेंगे जिसमें बहुत कुछ है। वो एक शायरा है, वो नबिया है, वो जज है, वो एक माँ है, वो एक बीवी भी है। उसका गीत क़ज़ात की किताब 4 या 5 बाब में उसका गीत है, आप देख सकते हैं। वो एक नबिया है, वो जज भी है, इंसाफ करने वाली है, वो लोगों का इंसाफ करती है। लेकिन जब वो खुद अपने आप को पेश करती है तो वो इनमें से किसी भी ओहदे पर फख्र नहीं करती। वो अपने आप को क़ज़ात की किताब में सबसे पहले हम देखेंगे 5 बाब मेरे साथ निकालें। दबूरा
کرتی ہے اسرائیل میں حاکم موقوف رہے، وہ موقوف رہے جب تک میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ وہ ماں کے رول پر، ماں کے کردار پر فخر کرتی ہے۔ اس کے نزدیک ماں کا عہدہ اور بلاوا اور خدمت اس کے شاعرہ ہونے سے بھی بڑھ کر ہے، اس کے جج ہونے سے بڑھ کر ہے، اور اس کے نبیہ ہونے سے بھی بڑا ہے۔ حالانکہ وہ خدمات اپنی اپنی جگہ روشنی ڈال رہے ہیں۔ میں تمام ماں کو اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں، اگرچہ وہ پیچھے رہ کر، پس منظر میں رہ کر خدمت کرتی ہے، اور وہ خدمت جو آپ کر رہی ہیں وہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے۔ آپ فیملی کو تشکیل دیتی ہیں، آپ ہوم بلڈر ہیں، اور آپ ہی کی بدولت پورے گھر کا نظام چلتا ہے۔ نہ صرف پورے گھر کا نظام چلتا ہے بلکہ آپ کے بچے، آپ کے شوہر، اور وہ تمام چیزیں جب ہم کسی مقام پر پہنچ جاتے ہیں ان سب کے پیچھے ماں کا رول ہوتا ہے، ماں کا کردار ہوتا ہے۔ یہ دبورا ماں ہو کر اٹھی، چاہے آپ ان بچوں کی بایولوجیکلی ماں نہیں ہے، لیکن اگر آپ ماں کا دل رکھتی ہیں اور اگر آپ کسی کے لیے کچھ کر رہی ہیں تو میرے خیال سے آپ ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے رہی ہیں۔ جب اسرائیل میں دبورا تب اٹھی جب اسرائیل غلامی میں تھا، اور غلامی میں کچھ اس طرح سے تھا کہ کنعان کی قوموں نے ان کی آزادی چھین لی تھی۔ یہ دوسرے دیوتاؤں کی پوجا کرنا شروع ہو گئے تھے، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ اس کا انجام ہمیشہ غلامی ہی ہوتا ہے۔ گناہ آپ سے پتہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ وہ آپ سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کو شادمان کروں گا، لیکن بائی مسٹیک گناہ فریب ہے۔ گناہ انسان کی شادمانی ختم کر دیتا ہے۔ گناہ انسان سے، گناہ خدا سے رشتہ توڑ دیتا ہے، نہ صرف خدا سے بلکہ انسانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، ناطے داروں سے بھی رشتوں کو وہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ چونکہ اسرائیل نے گناہ کیا، وہ ایک بحران میں تھے، دشمن ان کو ستا رہے تھے، آزادی جاتی رہی تھی اور وہ غلامی میں تھے، اس بحران میں تھے۔ اور ایک بات، کوئی مرد لیڈر سامنے نہیں آیا، کوئی مرد لیڈر اس وقت اسرائیل کو بچانے کے لیے سامنے نہیں آیا، اور ان حالاتوں میں دبورا کو خدا نے تیار کیا اس کام کے لیے۔ ایک ماں کو استعمال کیا اس نے تاکہ وہ اسرائیل کو غلامی سے اور اس بحران سے نکالنے میں ان کی خدمت کر سکے، ان کی مدد کر سکے۔ آپ کو پتا ہے کہ دبورا نام بہت خوبصورت ہے، جس کا مطلب ہے شہد کی مکھی، بھی شہد کی مکھی، یعنی کہ بڑی انڈسٹریز۔ شہد کی مکھی وہ ہوتی ہے جو شہد بناتی ہے، اور جب وہ شہد بناتی ہے تو نیچرلی شہد کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ ایک موم کے اندر سمجھ لے کے بنا ہوتا ہے، اس کے چوگرد ایک موم ہوتی ہے، اور شہد کی مکھی کیا کرتی ہے کہ وہ اتنی محنتی ہوتی ہے کہ وہ چھتا بنانے میں لگی رہتی ہے، اتنی محنتی ہے کہ درجہ حرارت کہتے ہیں کہ 50 سے 55 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، اور وہ موم جو ہوتی ہے وہ اسے کچھ نہیں ہونے دیتی، اور جیسے ہی ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہوتا ہے تو وہ کیا کرتی ہے، شہد کی مکھی وہ اپنے پروں سے پنکھا بن جاتی ہے، اور اپنے پروں سے وہ شہد کو ہلانا شروع کر دیتی ہے، یعنی کہ پنکھا بن جاتی ہے تاکہ ٹیمپریچر نارمل رہے۔ اتنی محنتی ہوتی ہے شہد کی مکھی، اور ایسی ہی محنتی ہے دبورا، جس کے نام کا مطلب ہی شہد ہے۔ انتہائی محنتی عورت، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ ایک شاعرہ تھی، وہ ایک نبیہ تھی، وہ جج بھی تھی، ایک بیوی بھی تھی، ایک ماں بھی تھی،
नेचुरली इम्तियाज होता है परखने का, समझ का, एक सोच का, एक परख लेने का किसी चीज को, उसके अंदर एक इम्तियाज होता है और वो दूर ही से देख लेती है कि किस फूल के अंदर शहद है और वो जाएगी और शहद लेकर आएगी, अपने अंदर जज्ब कर लेगी और छत्ते के अंदर लाकर डाल देगी। माँ के अंदर भी कुछ ऐसी ही खुसूसियात होती हैं, अपने बच्चे को पहचान लेने की, अपने बच्चे को परख लेने की। बच्चा चाहे लाभ छुपाने की कोशिश करे अपने दुखों को, अपनी मुसीबतों को, अपनी परेशानियों को, लेकिन माँ की शफ़क़त ऐसी है कि वो अपने बच्चे को दूर ही से देख के पहचान लेती है। वो चाहे जिक्र ना करे, वो चाहे कुछ ना बताए, लेकिन माँ का दिल ऐसा होता है कि वो अपने बच्चे की आंखों को देखकर ही पढ़ लेती है कि मेरे बच्चे के दिल में ऐसा क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि शहद की मक्खी के अंदर एक डंक होता है और माँ जो है, डंक इसलिए होता है ताकि अगर कोई दुश्मन शहद की मक्खी पर यानी कि शहद के छत्ते पर हमला करने आए तो वो उसे बचा सके शहद से। वो अपने दुश्मनों के लिए डंक इस्तेमाल करती है और माँ के अंदर भी कुछ ऐसी ही खुसूसियात हैं। माँ को भी खुदा ने कुछ ऐसी ही सलाहियतें दे रखी हैं अपने बच्चों के खिलाफ लड़ने की। जो कुव्वतें हैं, हालात हैं, रवैये हैं, शख्सियात है, उनसे लड़ने के लिए माँ को जितनी गैरत, जितनी जुर्रत बख्श रखी है, शायद ही किसी और के पास हो। गबूरा भी एक ऐसी ही शख्सियत थी जो कि अपने अंदर दर्द रखती थी, अपने कौम का, ना सिर्फ अपने बच्चों का बल्कि अपनी कौम का। फिर शहद की मक्खी के अंदर मिठास होती है और माँ से बढ़कर मीठी कोई और चीज़ है ही नहीं। और वो कहती है कि जिस वक्त इस्राएल तारीकी में था, गुलामी में था, गबूरा उस वक्त उठी है और उस वक्त लोग सिसक रहे थे। जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं थी, लेकिन गबूरा माँ बनकर उठी और उसने इस बहरान में एक जुर्रत के साथ काम किया और दुश्मनों के लश्कर का सरदार जिसका नाम सीसरा था उसको शिकस्त दी। उसकी कनपटी पर एक कील ठोंका गया और एक दूसरी औरत उसके साथ थी जिसका नाम याएल था। उसने उस दुश्मन के यानी कि सीसरा के कान की कनपटी पर कील ठोंका और दुश्मन की फौजें शिकस्त खा गई, गुलामी खत्म हो गई। ये काम किसने किया? एक माँ ने किया, एक औरत ने किया। आज मैं इस मैसेज के वसीला से तमाम माओं से कहूँगी कि हौसला रखें, जुर्रत रखें, खुदा आपके साथ है। अगर आज आपका खानदान बहरान में है, अगर आज आपका खानदान गुलामी में है, गुर्बत में है, तो इसके बदलने के लिए एक गबूरा की चाहिए, एक गबूरा की जरूरत है, एक गबूरा चाहिए। आए हम भी गबूरा जैसी शख्सियत को पहन लें ताकि अपने घरानों को, इन हालातों को और अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा बहरान है तो हम भी उसे बदलने वाले बने। और आज हम एक और माँ के बारे में सीखेंगे और उस माँ का जिक्र है सैमुएल की दूसरी किताब में, उसके 21वें बाब में पाया जाता है। इस माँ का नाम रिस्पा है। इस माँ के नाम का मतलब है गरम, यानी कि हॉट। गरम पत्थर जिस पर कोई चीज रखी जाए तो वो पक जाए। और गबूरा जो है यानी कि रिस्पा जो है जज्बात की शिद्दत और मोहब्बत से लबरेज औरत है। और पसे मंजर कुछ ऐसा है कि दाऊद बादशाह का जमाना था और मुल्क में काल पड़ा था, चीजें दस्तयाब नहीं थी
लोग भूखे मर रहे थे, 3 साल काल को हो गए थे। दाऊद बादशाह ने दुआ की, खुदा से कहा कि खुदा मेरे मुल्क में ऐसे हालात क्यों हैं, अपने चेहरे को मुझ पर जलवा कर फरमा। ऐसे हालात मेरे मुल्क में क्यों हैं? उसने दुआ की खुदा से। और अगर हम देखेंगे कभी कभी बहुत अच्छा है अगर हम रूहानी काल में होते हैं, फिजिकली तौर पर, रिलेशनरी तौर पर और फाइनेंशियली तौर पर अगर हमारी जिंदगियों में काल है तो खुदावन के चेहरे को तलब करें, खुदावन के चेहरे को मांगे अपने लिए और वजह दरियाफ्त करें कि क्यों है। खुदा ने दाऊद नबी पर जाहिर किया कि काल मुल्क में इसलिए है कि साउल जो कि तुझसे पहले बादशाह था, उसने एक कौम जो कि जबूनी है अपने अहद को तोड़ दिया था और उनको कत्ल करना शुरू कर दिया। ये गुनाह हुआ था, यानी कि साउल ने जबूनियों को कत्ल करवा दिया, उनके कितने लोगों को कत्ल करवा दिया जो कि उससे ये काम नहीं करना चाहते। और अगेन मेरे अजीजों, गुनाह जहां भी आ जाता है, तसल्ली आ जाती है, काल आ जाता है, गुलामी आ जाती है। दाऊद ने अच्छा किया, दाऊद ने क्या काम किया कि वो जबूनियों के पास चला गया, वो वहां पहुंच गया और उसने कहा मेरे मुल्क में ऐसे हालात चल रहे हैं क्योंकि हमने आपका गुनाह किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क से काल जाता रहे, वबा जाती रहे, बारिश हो, फसल आए, फल हो, खुशहाली आ जाए। हमने तुम्हारा गुनाह किया है, हमें बता हम क्या करें। दाऊद ने उनके पास जाकर अपनी गलतियों का इकरार किया, लेकिन उन्होंने क्या कहा? जब उन्होंने कहा कि आप लोगों ने हमारा कोई कसूर नहीं किया, लेकिन साउल बादशाह जो आपसे पहले था उसने अहद को तोड़ा, हमारी कत्ल और गारत की थी। अगर साउल के कबीले में से हमें 7 शख्स दे दिए जाएं जिन्हें हम पहाड़ पर लटका देना चाहते हैं तो हमारी तरफ से तुम आजाद हो जाओगे। दाऊद ने साउल के खानदान से 7 मर्दों का इंतजाम किया और उन्हें दे दिया। और उन्होंने क्या किया कि उन 7 मर्दों को लटका दिया सलीब पर और उनकी लाशों को दरख्तों पर लटका दिया। उन्हें सलीब दी गई और उन्हें दरख्तों पर लटका दिया गया। और उन 7 जो मर्द थे उनमें से 2 बेटे रिस्पा के थे। रिस्पा उनकी माँ थी। जब वो पहाड़ पर लटका दिए गए, गोया के सलीब पर लटका दिए गए, तो वो मर गए। लेकिन रिस्पा ने क्या किया? ये एक माँ थी, ये अपने मरे हुए बेटों के लिए भी दर्द रखती थी, इसके अंदर मोहब्बत थी। ये वहां पहाड़ पर चली गई और उसने तार तोड़ लिया और वहां चट्टान पर जाकर बैठ गई। और परिंदे आ रहे थे, लाशों को खाना चाहते थे, दरिंदे आ रहे थे, लेकिन उसने क्या किया? ये इतनी अजीम खातून है कि ये उस जगह से ना हटी। ये दिन को भी अपने बच्चों की हिफाजत करती रही। दिन को परिंदे आते थे, वो दिन को भी नहीं सोई। उसकी आंखों से नींद गायब हो चुकी थी। अपने बच्चों के लिए इतना वो दर्द रखती थी कि वो रात को भी हिफाजत कर रही है अपने बच्चों की कि कहीं दरिंदे और परिंदे आकर उसके बेटों की लाशों को खा ना जाए। और वो उड़ा रही है परिंदों को भी, दरिंदों को भी भगा रही है। मे भी वो रिस्पा पर भी अटैक करते होंगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसके बेटों को जो मर चुके थे मगर
और उन्होंने स्टैंड ले लिया है, माँ ने स्टैंड ले लिया था कि वो अपने बच्चों को कुछ नहीं होने देगी। वो दिन रात वहां पर बैठ चुकी है और अपने बच्चों का पहरा दे रही है। कैसी अजीम माँ है, माँ की खिदमत कैसी होती है। आप अंदाजा कीजिए, आप जो यहाँ पर माएँ हैं, बच्चे जब ड्यूटीज पर जाते हैं तो माँ पीछे दुआएं करती रहती है कि मेरे बच्चे ठीक तो हैं। अगर उन्हें ज़रा भी देर हो जाती है तो माँ का दिल एकदम से अंदर से वो हो जाता है कि बच्चे क्यों नहीं अब तक आए। माँ की मोहब्बत एक ऐसी मिसाली मोहब्बत है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। और मैं आप सब के लिए खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने आपको माँ बनने का शर्फ बख्शा। जब दाऊद बादशाह के कानों तक ये बात पहुंची तो दाऊद बादशाह ने वहाँ से उनकी लाशों को ऑर्डर जारी किए और उनकी लाशों को वहाँ से उतरवाया गया और बड़े ऑनरेबल तरीके के साथ, इज्जत के साथ उनको दफनाया गया, कफारा दिया गया और मुल्क में बारिश हुई और खुशहाली आई। और ये एक और माँ थी, मिसाली माँ। जितनी भी माएँ आज यहाँ मौजूद हैं, मेरी दुआ है कि आपके अंदर एक दबूरा जैसी शख्सियत उभर आए, एक रिस्वा जैसी शख्सियत उभर कर आए और आप अपने घरानों के लिए, अपने इन जिन हालातों में से आप गुजर रही हैं, आप उनके लिए स्टैंड लेने वाली बने, आप उनके लिए दुआएं करने वाली बने। आपकी दुआ से सब कुछ हो सकता है। अगर किसी के माइंड में ये चीज हो कि नहीं कुछ नहीं हो सकता, ये चीज इम्पॉसिबल है, किसी की जिंदगी नहीं बदल सकती, तो मैं कहती हूँ कि आप दबूरा की शख्सियत देखें कि कैसी उसकी शख्सियत थी, कि कोई मर्द लीडर नहीं है लेकिन वो एक मर्द बनकर उठी है और उसने पूरी कौम को उस बहरान में से निकाला है, उस परेशानी में से निकाला है जब लोग बुतों की प्रस्तिश करते थे, जब लोग सिसक रहे थे, जब लोग परेशानी के आलम में थे, तो दबूरा सामने आया। दबूरा को खुदा ने इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हिम्मत थी, एक जुर्रत का मुजाहिरा किया। आज मैं आप तमाम माओं से भी कहूँगी कि अगर आप जुर्रत का मुजाहिरा करें तो हालात बदल सकते हैं, और जब आप जुर्रत का मुजाहिरा करेंगी तो रोशनी आएगी, तब्दीली आएगी, नजात आएगी, ना सिर्फ आपकी जिंदगियों में बल्कि आपके घरानों में और आपके वसीला से दूसरों की जिंदगियों में। अगर आज रूहानी काल में हमारे मुल्क में, हमारी जिंदगियों में अगर आज खुशकी है, अगर आज रिश्ते मान पड़ गए हैं, जिंदगी नाम की कोई चीज नहीं है, पाकुल की बारिश अगर रुकी हुई है हमारी शख्सी जिंदगियों में, हमारे खानदानों में, हमारे चर्चेज में बारिश नहीं हो रही, कलाम नाजिल नहीं हो रहा, पाकुल की बारिश नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही, आसमान अगर बंद है तो रिस्वा जैसी माँ बन जाए, रिस्वा जैसी शख्सियत बन जाए, दबूरा जैसी माँ बन जाए, दबूरा जैसी शख्सियत बन जाए। और जब आप माँ बनकर उठेंगी, एक शख्सियत बनकर उठेंगी, तो हालात बदलेंगे, और ना सिर्फ हालात बदलेंगी बल्कि रोशनी आएगी, बल्कि एक नई चीज़ों का वजूद होगा। मेरी आप तमाम से गुजारिश है, भाइयों से, बहनों से, बच्चों से, कि अपने माँ की और बाप की इज्जत करें, क्योंकि जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो इसके साथ वादा है, और वादा क्या है कि तेरा भला हो और तेरी उम्र दराज हो। हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, अपनी माँओं की इज्जत करनी है, उनकी कदर करनी है, ना सिर्फ माँ की, यहाँ पर जितने भी हजरात बैठे हुए हैं, बल्कि बीवियों की, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि हम बड़े अच्छे अच्छे अल्फाजों से अपनी माँओं को, अपनी बीवियों
बीवियों को भी। अगर एक माँ के वसीला से आप इस दुनिया में आए हैं तो दूसरी यानी कि आपकी बीवी के वसीला से आपके बच्चे इस दुनिया में आए हैं। सो अपने बच्चों को भी ये सिखाएं। आपका काम है कि अपने बच्चों को भी ये तरबियत दे कि हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है, क्योंकि ये हमारे लिए पहला हुक्म है कि अपने माँ और अपने बाप की इज्जत करें। क्योंकि जब हम बड़े होकर अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, उनको अहमियत देते हैं, उनको तरजीह देते हैं, तो हमारे बच्चे जो कि देख रहे होते हैं सब कुछ, उनको आपको सिखाने की जरूरत नहीं। जब वो देखेंगे तो वो खुद ब खुद ये एक्ट करेंगे और ये करके दिखाएंगे। जब आप उनके सामने गालियां निकालेंगे तो ऑब्वियसली वो शायद 10 बात के कटल में। सो अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि ये हमारे लिए पहला हुक्म है। सो खुदावन आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। आमीन।